Hello, myself Priyesh Jha, and I am chemistry faculty of Taxila Model Senior Secondary School, Faridabad. And today I am going to deliver a lecture for class 12th. The running chapter for class 12th is solution, and we have already discussed many more topics. And in previous class we have discussed about what is elevation in boiling point, what is depression in freezing point, application of depression freezing point, antifreeze substance, and so on. And today class we will discuss about osmosis and osmotic pressure, reverse osmosis and application of reverse osmosis. So the first topic of today is osmosis. So generally, what is osmosis? Osmosis is a general process in which solvent molecules move from solvent side to solution side, or we can say that the movement of particles from low concentration to high concentration, generally known as solution. So osmosis, known as osmosis. For example, if we connect two container by SPM, this represent SPM means semi permeable membranes, and in this sides solvent is present, and in this side solution container are present. Then when this solvent molecules connected to this solution container through SPM, the movement of solvent this molecules takes place through SPM from solvent side to the solution side, and this process is generally known as osmosis. इसमें होता क्या है कि जब दो कंटेनर को हम SPM के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं तो जो सॉल्वेंट साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किधर मूव करना चालू कर देते हैं, सॉल्यूशन साइड में, और उस प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, SPM बोलते हैं. अब जो SPM होते हैं, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ये दो तरह के होते हैं. एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है हमारा, जो आर्टिफिशियल है वो क्या है हमारा, सेलुलोज एसीटेट, और जो नेचुरल होता है, नेचुरल इन एनिमल मेम्ब्रेन. तो क्वेश्चन ये आ सकता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सेमी परमिएबलेंस, देन इट इज सेलुलोज एसीटेट्स, एंड वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल SPM, दैट इज एनिमल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, SPM ऑस्मोसिस कहलाता है, और ये किसके थ्रू होता है, SPM. नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure, which is represented at pi. So what is osmotic pressure? Osmotic pressure is a pressure applied on solution side to stop the process of osmosis. इसमें होता क्या है, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, ये क्या हमारा SPM, ये कौन सा कंटेनर है, जो कि सॉल्वेंट है, और ये वाला कंटेनर क्या है, ये क्या हमारा सॉल्यूशन. सो in solution side we generally applied a pressure which is known as P external to stop the
process of osmosis, and this pressure generally known as osmotic pressure. होता क्या है कि ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स किधर मूव करते हैं, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड. अगर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड मूव कर रहा है, इट मींस सॉल्वेंट साइड प्रेशर क्या हमारा हाई है और सॉल्यूशन साइड प्रेशर क्या है, लो है. अगर दोनों प्रेशर क्या होता, इक्वल हो जाता, तो नो मूवमेंट टेक प्लेस होता. देन एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं जो कि इनके प्रेशर के डिफरेंस के इक्वल होता है. सपोज सॉल्वेंट साइड प्रेशर इज 10 atm एंड सॉल्यूशन साइड प्रेशर इज 5 atm. तो डिफरेंस कितने का है, 5. सो हेयर नीड 5 atmospheric pressure to stop the process of osmosis. So here we applied a pressure of 5 atm so that both pressure on both side becomes equal. इसलिए ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. और उस प्रेशर को हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई. एंड फैक्टर्स ऑन विच ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स, factors on which osmotic pressure depends. So there are two factors on which osmotic pressure depends. First one is pi directly proportional to C, where C क्या होता है हमारा, concentration, and pi directly proportional to T. T is temperature. So pi directly proportional to Ct. So proportionality रिमूव करने के लिए pi इक्वल टू क्या जाएगा, R Ct, और हम लिख सकते हैं इसको Crt. तो ये जनरल फार्मूला किसका होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, where C is the concentration. This formula can also be written as NYV RT. अगर ये ml में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1000. यहाँ पे हमने C को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, NYV. क्यों, बिकॉज C इज इक्वल टू NYV. अब NV क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम. सो फाइनल फार्मूला कैन बी रिटन एज WB अपॉन में MB इंटू V ml इंटू RT इंटू 1000. So this is the final formula for numerical portion. Here N is equal to WB by MB. Okay, so this formula is used to calculate the osmotic pressure if all the data are given. This formula can also be used to find the molecular mass of the substance if osmotic pressure is given. तो हम इसका यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज classification of solution according to pi. Pi means osmotic pressure. So there are three types of solution according to osmotic pressure. First one is isotonic solution. Next one is hypertonic solution, and third one is hypotonic solution. First one is isotonic solution, second one is hypertonic solution, and third one is hypotonic solution. देखो, isotonic solutions are those solutions having same osmotic pressure. Means pi 1 is equal to what, pi 2. मतलब दोनों सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम. एंड pi 1 इक्वल टू क्या, C1 RT, एंड pi 2 इक्वल टू क्या, C2 RT. RT RT कैंसिल, सो CN इक्वल टू क्या, C2. तो दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक तभी होंगे जब दोनों के कंसंट्रेशन क्या होंगे, सेम. अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा, आइसोटोनिक. और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना तो एक कंटेनर से दूसरे में जाएगा ना दूसरे से पहले में आएगा. हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक ये तभी होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो. तो अगर क्या है, हाई है, देन उसको क्या बोलेंगे हम,
हाइपरटोनिक, और अगर लो है, पाई क्या हमारा हाई है तो क्या बोलेंगे उसको हाइपोटोनिक, और पाई हमारा क्या है लो है, देन उसे क्या बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो ब्लड सेल होते हैं, ब्लड सेल आइसोटोनिक कितने होता है 0.9% W सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक नंबर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आंसर क्या होगा 0.9% W/V सॉल्यूशन ऑफ NaCl। हाइपोटोनिक क्या होता है C मस्ट बी ग्रेटर देन 0.9% W/V NaCl solution, and hypotonic solution C must be less than 0.9% W/V। तो ये कंडीशंस होते हैं किसके लिए, किसके लिए होता है ये आइसो, हाइपर एंड हाइपो। आइसो में कंसंट्रेशन कितना होगा 0.9%, हाइपर में कितना होगा मोर देन 0.9%, एंड हाइपो में क्या होगा लेस देन 0.9%। हाइपर में क्या होता है, सपोज अ ब्लड सेल is placed in a solution having concentration generally more than 0.9%। सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है ब्लड सेल है और बाहर का कंसंट्रेशन कितना है ग्रेटर देन 0.9%। तो उस केस में क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो इस साइड कंसंट्रेशन क्या है कम है, इधर कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा श्रिंकिंग होगा। तो ये ब्लड सेल क्या हो जाएगा श्रिंक करना चालू कर देगा। तो ये भी कंडीशन होता है। और अगर क्या होता है यहां पे C क्या है लेस देन 0.9% और ये ब्लड से रखा हुआ है, तो बाहर का कंसंट्रेशन क्या है कम और अंदर का कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द ब्लड सेल, और जब एंटर इनटू द ब्लड सेल होंगे तो इसका साइज क्या होगा बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा स्वेलिंग आ जाता है। तो इसका साइज क्या होता है बढ़ जाता है और इसका साइज क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज reverse osmosis। So reverse osmosis is the opposite to the osmosis. In this reverse osmosis, molecules move from solution side to the solvent side। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है सॉल्यूशन साइड से किधर मूव करते हैं सॉल्वेंट साइड में, और उसको हम जनरली क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। फॉर सिंप्लिसिटी थ्रू डायग्राम, this is SPM। solvent and this side solution, और here P external greater than pi। मतलब सपोज कर लो हमें लगाना था 5, हमने लगा दिया कितना 10। तो अब क्या होगा इन सॉल्यूशन साइड प्रेशर बिकम्स हाई, तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होगा ये मॉलिक्यूल्स इधर मूव करना चालू कर देगा, मतलब कहाँ की तरफ आएगा सॉल्यूशन से किधर सॉल्वेंट में, और इसी प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं रिवर्स osmosis। And application of reverse osmosis the RO system, full form of RO is what रिवर्स ऑस्मोसिस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो डर्ट मतलब वाटर के जो मिक्स डर्ट सब्सटेंस आते हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं आरओ सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या बोलते हैं सिर्फ प्योर वाटर मिलते हैं, और वो किसका एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज टू फाइंड आउट वाटर फ्रॉम सी वाटर विच इज कॉल्ड डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर से क्या करते हैं वाटर को सेपरेट करते हैं, तो भी किसका एप्लीकेशन होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का।
तो दिस ऑल आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि हमारा फिनिश हो चुका है. इन नेक्स्ट क्लास we will start a next and last topic of solution chapter. And for today, thank you.